So today we will start with uh, physical properties of alkyl halides. Physical properties of alkyl halides. Okay. So the very first physical property is physical state. Physical स्टेट, इसका कहने का मतलब है जो अल्काइल हलाइड्स आपको पढ़ा रहे हैं वो दिखने में कैसे हैं, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है. ओके, सो सिंपल लोअर मेंबर जो भी हैं आर कलरलेस गैसेस, आर कलरलेस gases at room temperature. Okay, higher members are per and higher member are pleasant smelling liquid. Pleasant smelling liquids. Okay. The number two property is solubility. Okay, whether they are soluble in water or not. और किस चीज में ये soluble होते हैं? Alkyl halides dissolve in polar solvent. Dissolve in polar solvent, but insoluble in non-polar solvent. Insoluble in non-polar solvent. Polar solvent like ethanol, right? Ethyl acetate. Non-polar solvent like benzene and hexane, right? Yeah. Number three is melting and boiling point. Melting and boiling point. So generally they have high melting and boiling points as compared to your alkane, right? Because इससे पहले हमने प्लस में पढ़ा था alkanes, alkene and alkynes. Okay, so alkyl halides have higher melting point and boiling point, okay, as compared to alkanes. Okay, the last number four is density. Alkyl halides are generally lighter than water. Lighter than water. Okay, but alkyl bromide and alkyl iodide. Alkyl bromide and alkyl iodide. And heavier alkyl iodide are more denser than water, are more denser than water. That means alkyl halide have the maximum
density, then alkyl bromide, then alkyl chloride, then alkyl fluoride. Okay, so they are the 4 physical properties that you need to learn about. Okay, done? Yes, sir. Okay, let me clear that. Now we come on to the chemical properties. Okay, chemical properties. So very different variety of reactions are shown by alkyl halides, and very first type of reactions are nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic Substitution. ठीक uh, है उसमें substitution reaction. reaction. Okay, तो जनरली मेरा क्वेश्चन यही होगा, व्हाट आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction? Yes, what are nucleophilic substitution reaction? Okay, see what will happen. I have a alkyl group. I have a alkyl group. On this alkyl group, I have a halide. ठीक है, मेरे पास एक हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है यहां पे. ठीक है, अब एक और ग्रुप है, अदर ग्रुप. ओके, and the scenario is the other group is very strong. Other group is very strong. So when this strong group, this is also nucleophile. Okay, and this is also nucleophile. ठीक है positive. Okay. Both are nucleophile. When this nucleophile attack onto R group, okay, this nucleophile will leave. ये nucleophile निकल जाएगा. So what is the reaction? We have a reaction that is other group. Okay, other group attached with R plus हैलाइड निकल गया है वहां से. अब मुद्दे की बात क्या है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? ऐसे तो अब हैलाइड अटैक कर दे, है ना, अब हैलाइड अटैक कर दे, पर दिस इज नॉट पॉसिबल. दिस इज नॉट पॉसिबल. अब पॉसिबल क्यों नहीं है ना? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग? इंपॉर्टेंट इज दिस ग्रुप जो पहले अटैक कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग ग्रुप है. वो क्या है? स्ट्रॉन्ग ग्रुप है तो ये भी न्यूक्लियोफाइल, हैलाइड भी न्यूक्लियोफाइल है, मैंने बताया आपको, पर ये वीक है. ओके, तो स्ट्रॉन्ग ग्रुप आके धक्का मारेगा तो वीक ग्रुप निकल जाएगा. ओके, स्ट्रॉन्ग ग्रुप आके धक्का मारेगा तो वीक ग्रुप निकल जाएगा. जैसे मैं सिंपल से एग्जांपल लेता हूं फुटबॉल या हॉकी की. ओके, मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं फुटबॉल या हॉकी की. तो फुटबॉल या हॉकी के अंदर क्या होता है? सारे प्लेयर खेल रहे होते हैं, पर जैसे ही उनके कोच को लगता है कि एक प्लेयर वीक पड़ रहा है तो वो उसकी जगह पे कोई व्हाट यू कॉल द स्ट्रॉन्ग प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर देता है. ओके, तो यहां पे भी ऐसा होगा, बस सब यहां पे जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, तो हम न्यूक्लियोफाइल क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो हम न्यूक्लियोफाइल पढ़ेंगे. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और वीक न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा. ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा. ओके, तो इसके बेस के ऊपर हमने डेफिनेशन लिखनी है. सो व्हाट इज आवर डेफिनेशन? सो आवर डेफिनेशन इज about the nucleophilic substitution reaction, those reactions in which a
stronger nucleophile, okay, stronger nucleophile displaces या replaces a weaker nucleophile. ओके, तो Yes. डेफिनेशन समझ में आ गई। हाँ. तो हमें स्ट्रॉन्ग ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया वीक ग्रुप को। आपने क्या ध्यान में रखना है कि किससे स्ट्रॉन्ग कौन सा ग्रुप है। क्लियर। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ nucleophilic substitution reaction. So generally they are of two type. Okay, they are of many type, like I'm writing here SN1, then SN2, okay beta, then SNI, then SNAR. So there are generally four types, right? But since you are in +2 only, right? So आपके कोर्स में बेटा SN1 SN2 है, ओके। तो आपके कोर्स में ये दोनों नहीं है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SN1? SN1 स्टैंड्स फॉर substitution nucleophilic unimolecular. It is a unimolecular reaction. Okay. What is SN2? Substitution nucleophilic, हाँ जी, बाई मॉलिक्यूलर। ओके, दो का मतलब हो गया बाई मॉलिक्यूलर, एक का मतलब हो गया यूनिमॉलिक्यूलर। तो आप कोई भी यूज कर सकते हो यहां पे। क्लियर। सो आई एम गोइंग टू रब दिस, राइट। सो नेक्स्ट इज let's study these SN1 and SN2 type reactions one by one. Okay, so first we are going to study SN1 type reaction. Okay, what are those reactions? Okay, so generally they are of two-step reaction. They are of two-step reaction. Okay, step one involves formation of carbocation in polar solvents. Okay, and step two is the attack of न्यूक्लियोफाइड। ओके, तो दो स्टेप होंगे इस रिएक्शन के अंदर। पहला स्टेप है ओके SN1 कार्बोकैटायन फॉर्मेशन एंड SN2 इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइड। ओके, so next is let me write down in the form of reaction. So I have a carbocation attached with I have a alkyl halides. Okay, alkyl halides, and I have a X attached with it. Okay, so
whenever I am adding some of the solvent, but this reaction is sorry, this reaction is slow. Okay, it will be broken down into like, sorry, this is a carbon, this is R, this is R, and this is R, and here is the positive charge. It is a cation plus X negative, plus X negative. Okay, this is the first step. And in the second step, when you have a proper carbocation, okay, proper carbocation, we have a nucleophile, Nu negative. So that will attack here, and this reaction is fast. Okay, and we will get two compounds, two same compounds, but with a little change in the orientation. But a little change in the orientation. Okay, ये दोनों क्या हो गए? हाँ जी बेटा, these both are enantiomers. ठीक है. enantiomer क्या होते हैं? बस हाँ, RS कॉन्फ़िगरेशन का फर्क होता है. हमने पढ़ा था ना, ऑप्टिकली एक्टिव, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, एक लीवो रोटेटरी होगा, राइट? हाँ जी. Yes, sir. तो लेट्स कैलकुलेट रेट ऑफ द रिएक्शन. तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू के. K. रेट ऑफ द रिएक्शन हम कहां से डिटरमाइन करते हैं? स्लो स्टेप से. No, sir. कहां से डिटरमाइन करते हैं? स्लो स्टेप से. हाँ जी. तो ये स्टेप नंबर 1 है, ये 2 है. स्लो कौन सा है? फर्स्ट स्टेप. ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर आप ध्यान से देखो, मैंने कहीं भी न्यूक्लियोफाइल नहीं डाला है. ओके, मैंने कहीं भी न्यूक्लियोफाइल नहीं डाला है. ओके, हाँ जी. तो इसका मतलब मैंने यहां पे R3 कार्बन X लिया है बस, और इसकी पावर क्या आ गई? 1. ओके, इसकी पावर कितनी आ गई? 1. देन व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1. ओके, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया हमारा? यूनिमोलिकुलर. ओके, SN1 हो गया इसकी वजह से. ओके, दिस इज आवर SN1 ऑर्डर रिएक्शन. क्लियर? Yes, sir. गुड. समझ में आ गया ना पक्का? हाँ. ओके, नाउ वी विल डू व्हाट आर द फैक्टर्स, what are the factors that affect SN1 type reaction? Okay, what are the factors that affect SN1 type reaction? So let me write down the factors affecting SN1 reaction. What are the factors that affect SN1 type reaction? Okay, so very first factor is nature of alkyl halide. Nature of alkyl halide. Okay, see, ultimately क्या हो रहा है? यहां पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रही है. क्या हो रहा है? कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रही है. तो एल्काइल हलाइड क्या होगा? हाँ जी, दैट एल्काइल हलाइड will be more favored, that alkyl halide will be more favored, which give stable carbocation, which will give stable carbocation, right? Now what will happen? Which will give
stable carbocation. That means which carbocation is more stable? Tertiary. Then secondary alkyl halide. Then then primary alkyl halide. Then methyl. methyl. हाँ जी, तो जो एल्काइल हलाइड टर्शियरी एल्काइल हलाइड टर्शियरी कार्बोकेटाइन देगी, सेकेंडरी एल्काइल हलाइड सेकेंडरी कार्बोकेटाइन देगी। और कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है? टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि टर्शियरी एल्काइल हलाइड जो होगी वो हमें क्या देगी? SN1 टाइप रिएक्शन देगी। अगर मैं टर्शियरी से करूंगा रिएक्शन तो बहुत जल्दी हो जाएगा SN1 टाइप में। अगर सेकेंडरी से करूंगा तो थोड़ा सा स्लो होगा, प्राइमरी से करूंगा तो थोड़ा और स्लो होगा रिएक्शन। ठीक है? नाउ वी आर लर्न अबाउट पॉइंट नंबर 2. What is our point number 2? The point number 2 is nature of nucleophile. Nature of न्यूक्लियोफाइल। ओके, अच्छा आपने न्यूक्लियोफाइल कौन से स्टेप में देखा था? स्टेप 1 में था, स्टेप 2 में था? 2 में। 2 में, है ना? तो स्लो रेट कौन डिटरमाइन करता है? स्लो स्टेप या फास्ट स्टेप? स्लो स्टेप। हाँ जी, तो इसका मतलब नो इफेक्ट ठीक है ऑफ, हाँ जी, नो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्यों? आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लो, सारे न्यूक्लियोफाइल इक्वल स्पीड से अटैक करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वाला स्टेप तो हमारा फास्ट है। स्लो स्टेप जो है हमारा वो है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। ठीक है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? गुड। सो नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 3. The point number 3 is nature of solvent. Nature of solvent. ओके, देखो पहले स्टेप में क्या हो रहा है? पहले स्टेप में है आपके पास एल्काइल हलाइड। ओके, और हम वो एल्काइल हलाइड खुद ब खुद पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव में टूट रहा है। हाँ जी, यस और नो, है ना? तो खुद ब खुद कैसे टूटता है? जब उसमें कोई पोलर सॉल्वेंट डाला हो। ठीक है बेटा, तो हम लिख सकते हैं यहां पे पोलर सॉल्वेंट फेवर SN1 टाइप रिएक्शंस। ओके, तो सॉल्वेंट जितना ज्यादा पोलर होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन उतना ज्यादा फास्ट होगा। ठीक है, और सॉल्वेंट जितना कम पोलर होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? उतना कम फास्ट होगा। क्लियर है? नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टीरियोकेमिस्ट्री। ओके, स्टीरियोकेमिस्ट्री। ओके, तो अभी आपने देखा था मैंने 2 टाइप के प्रोडक्ट बनाए थे। ओके, कौन से 2 टाइप के प्रोडक्ट बनाए थे बेटा? एक तो मैंने बताया था डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और दूसरा मैंने बताया था लीवो रोटेटरी होगा। तो उसका रीजन क्या है? मान लो मेरे पास कार्बोकेटाइन तो बन गया है बेटा। ओके, तो कार्बोकेटाइन हमने बना दिया है। अब कार्बोकेटाइन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बेटा आपको याद होगा कार्बोकेटाइन का क्या स्ट्रक्चर था? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, इसका मतलब इट इज अ प्लेन जस्ट लाइक योर नोटबुक। अगर आप अपनी नोटबुक को बंद करके हाथ में पकड़ोगे तो वो बिल्कुल एक प्लेन फट्टे की तरह नजर आएगी। दिस इज ऑल्सो प्लेन, दिस इज ऑल्सो प्लेन। ओके, तो देखो अब हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल। ओके, हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। मैंने दोनों डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिए हैं। रीजन, या तो ये न्यूक्लियोफाइल अपर साइड से अटैक करेगा,
ओके, अपर अप अटैक, अपर साइड अटैक, ओके। या तो ये न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करेगा या ये न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक करेगा, ओके। बॉटम अटैक, अगर ऊपर से अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल ऊपरली साइड लग जाएगा, प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। अगर नीचे से अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल नीचे वाली साइड लग जाएगा, प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, ओके। ठीक है। हाँ, इसलिए हमारे पास क्या बनते हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, दो डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट बनते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग रेसिमिक, RESI, रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हो, रेसिमिक मिक्सचर, मतलब मिक्सचर ऑफ R एंड S आइसोमर्स, ठीक है। दो आइसोमर होंगे, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, एक लिवो रोटेटरी होगा, दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, R एंड S। एक R होगा तो दूसरा डेफिनेटली S होगा, क्लियर। और दोनों किस कौन सी रेशो में बन रहे हैं, 50:50 में बन रहे हैं, 1:1 में या 50:50 में बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं, क्योंकि कार्बोकैटायन आपका प्लेनर है, उसके लिए दोनों ऑप्शन पॉसिबल हैं, या तो अटैक ऊपर से हो जाए या अटैक नीचे से हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, ओके। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है। चलो, दिस इज ऑल अबाउट our SN1 type reaction. So this is very important. Now we will do SN2 type reactions. Now we will write SN2 type reactions. Okay. What happened in SN2 type reactions? Okay. They are let me, what do you call that, rub that. So basically let me write in the sense of alkyl halides. Those alkyl halide which are not capable of forming carbocation, okay, show SN2 type reactions. SN2 type reaction. What does it mean? What is it mean? It simply means, okay, कि ऐसा नहीं कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, मे बी ऐसा हो सकता है कार्बोकैटायन जो बने वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो, अनस्टेबल चीज का भी नहीं बन, अनस्टेबल मतलब नहीं बनती है, ओके। सो सच रिएक्शन कैन फॉलो वाया ट्रांजिशन स्टेट, ओके। सच reaction occurs through ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है बेटा, जहां पे आधे बॉन्ड टूट रहे होते हैं और आधे बॉन्ड बन रहे होते हैं, ओके। तो सबसे अनस्टेबल अल्काइल हैलाइड कौन सा था, ये वाला मिथाइल वाला जो मैंने ड्रॉ करा था। तो सबसे अनस्टेबल वहां पे सबसे फेवरेबल बन जाएगा, क्योंकि जब मैं अपना न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव ले रहा हूं और वो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा है, ओके, देन व्हाट विल हैपन, सो दिस इज द स्लो प्रोसेस बिकॉज एक्स इज नॉट रेडी टू गो, एक्स इज नॉट रेडी टू गो, इसलिए ये स्टेप क्या हो गया, स्लो हो गया है। ये स्टेप जब स्लो हो गया है तो क्या होगा, यहां पे मेरे पास कार्बन है बेटा और 3 हाइड्रोजन्स हैं, ओके।
तो क्या होगा, एक तरफ तो न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे जुड़ने की कोशिश कर रहा है कार्बन से, ओके, दिस इज कॉल्ड पार्शियल फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड्स, पार्शियल मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। और दूसरी तरफ थोड़ा थोड़ा एक्स जो है वो टूटने की कोशिश कर रहा है एल्काइल हैलाइड से, ओके, अल्काइल ग्रुप से। देन व्हाट विल हैपन नाउ, ओके, व्हेन द दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट ये एक ऐसी स्टेज होती है जहां पे कुछ पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे होते हैं। क्लियर? तो ये हो गया मेरे पास। अब इसके बाद फर्स्ट स्टेप, और यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे पूरा बन जाएगा, ओके, और ये आपके एक्स को निकाल देगा, एक्स नेगेटिव जो है वो निकल जाएगा। क्लियर? हाँ जी। सो इसके ऊपर अटैक हो रहा है। अटैक इंपॉर्टेंट क्या है अटैक के अंदर? अटैक इज ऑलवेज बैक साइड। अटैक इज ऑलवेज बैक साइड। आप कोई भी रिएक्शन पढ़ोगे जिंदगी के अंदर, ठीक है, तो अटैक हमेशा बैक साइड से होगा। तो हम सिंपल सी बात बोलते होते हैं, धक्का और धोखा पीछे से दिया जाता है। तो धक्का भी और लगा लो चाहे इसको इलेक्ट्रॉन्स का, चाहे धोखा लगा लो, राइट, पीछे से ही आएगा। तो अटैक हमेशा बैक साइड हो जाएगा। अगर तो आपका ये एल्काइल हैलाइड आर था कॉन्फ़िगरेशन में, अब ये कंप्लीटली चेंज होके एस बन जाएगा और इसको बोलते हैं 100% कन्वर्जन। ओके, क्या बोलते हैं इसको? 100% कन्वर्जन। क्लियर? सो लेट मी राइट द रेट ऑफ द रिएक्शन. What is the rate of the reaction? The rate of the reaction is K, alkyl halide, H3 कार्बन X, साथ में इसके हो जाएगा अब न्यूक्लियोफाइल भी, क्योंकि दोनों, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा तो एक्स निकलेगा नहीं। ओके, एक्स कब निकलेगा? जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो इसका मतलब दोनों का रोल है यहाँ पे, क्योंकि यही स्टेप स्लो है। तो यहाँ पे मुझे दोनों के रिएक्टेंट को देखना है। तो एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, दोनों पे इक्वल डिपेंड करता है। तो ऑर्डर कितना हो गया? 1 + 1 2। इसलिए इसको हम बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है बेटा? तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ये R था तो ये टोटल S हो गया, और ये 100% कन्वर्जन होती है। ठीक है, और इस कन्वर्जन का नाम होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं वेल डन इन्वर्जन। वेल डन इन्वर्जन, जब पूरा कन्वर्ट हो जाता है, हाँ जी, तो उसको बोलते हैं हम लोग वेल डन इन्वर्जन। क्लियर? अब एक बात और, ये जितना स्ट्रांग होगा, ये जितना स्ट्रांग होगा उतना एक्स जो है वो इजीली निकलेगा। ये बात ध्यान में रखनी है। इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियोफाइल जितना स्ट्रांग होगा, ठीक है, आपका रेट ऑफ SN2 टाइप रिएक्शन जो है वो उतना फास्ट हो जाएगा। क्लियर? एक चीज और यहां पे है, ये होता है थ्रू सिंगल स्टेप रिएक्शन। दिस इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन, ओके। जो हमने पहला पढ़ा था वो 2 स्टेप रिएक्शन था। इसमें ये एक ही स्टेप है, जो बीच का मॉलिक्यूल है वो बीच, कोई बॉन्ड टूट रहा है, कोई बन रहा है, वो इंटरमीडिएट सी स्टेज है। ओके, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट टूट गया हो जैसे पिछले में हो गया था, पहले टूटेगा फिर दूसरे से जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अटैक हो गया, टूटेगा जुड़ेगा वो निकल जाएगा। तो ये एक ही स्टेप हो गया यहाँ पे, एंड वी कॉल इट एज अ सिंगल स्टेप कंसर्टेड रिएक्शन। ओके, कंसर्टेड मतलब होता है एक ही रिएक्शन में, एक ही स्टेप में हो जाना। क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस एंड वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स। ओके, now we will discuss about the factor affecting, let me take black color, factor
affecting SN2 reaction. Okay, SN2 reaction. Okay, and we know that the what is the first factor. पहला फैक्टर कौन सा है? नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड. हाँ जी, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड. तो मैंने बताया कार्बोकटाइन नहीं बनना चाहिए. अगर कार्बोकटाइन बन गया, हाँ जी, अगर कार्बोकटाइन बन गया, ठीक है ना, तो हाँ जी, तो सबसे पहले मिथाइल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी. अगर आपके पास मिथाइल एल्काइल हैलाइड है, ओके, तो आपका रिएक्शन जो है वो श्योर शॉट SN2 से फॉलो होगा. क्लियर? चलो नंबर 2. इसमें अपोजिट हो. नंबर 2 इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट. नेचर ऑफ solvent.